Middle. River's largest. Elephants spend much of the year grazing in until the dry season draws them to the plants on the river's edge. Good evening, madam. Good evening, sir. Start कर Yeah. दो. Yeah, start, please. Good evening, all of you. Good evening. Good evening, ma'am. Okay, I hope you all remember what we did last time. Yes, ma'am. Okay, let us continue now today. Okay, read करके आते हैं कि नहीं? You all read and come, revise and come, whatever we do last time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Only 3. What about others? Yes, ma'am. Please keep revising. Chemistry एक ऐसा subject है जो एक ही दिन में भूल जाएंगे. ठीक है? If you do not revise it properly, it may seem easier, but it is very volatile. ठीक है? Anyways, I'll check whether you people remember or no from the topic which we have done last time. चलो कोई बता सकता है क्या? What were we doing last time? What did we do? Methods of preparations of amines. Methods of preparation. Can you name it? Anyone? What are the different methods of preparations of amines? By reduction of nitro compounds. Yeah, by reductions of nitro compounds. So how do we bring about the reduction? By using metal and HCl or LiAlH4, lithium aluminium hydride. Yes. Metal plus acid. Metal and acid can be zinc acid, zinc plus HCl or iron plus HCl. Okay. And tin plus That HCl. is one option. दूसरा क्या है? Lithium aluminium hydride. इनको बोलते क्या है? What are they generally called as? Reducing agent. Reducing agents. Okay. So nitro compounds on reduction by using reducing agents.
they'll get converted into what? The primary amines. बस ये दो ही यूज कर सकते हैं क्या? एक और भी ऑप्शन है ना, what is that? By using amides and Gabriel thalamide reduction. मैं नाइट्रो कंपाउंड्स का ही बोल रही हूँ. एक और reducing agent क्या है? Tin plus HCl. नहीं, वो तो अब मेटल NaBH4. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. यस, हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, वो भी एक ऑप्शन है ना रिड्यूसिंग एजेंट्स का. Yes, ma'am. ओके, Yes, yes. हाँ, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. वी कैन यूज एनी वन आउट ऑफ दैट, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट द रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इनटू NH2 ग्रुप. बस NO2 को क्या करना है, NH2 में कन्वर्ट करके लिखना है. तुम्हारा R ग्रुप कुछ भी होने दो, ठीक है. NO2 ग्रुप दिखा और रिड्यूसिंग एजेंट दिखा तो क्या करने का, NO2 के बदले पे NH2 लिख देने का. बाकी का रिमेनिंग ग्रुप यू शुड कीप इट एज इट इज. ओनली द फंक्शनल ग्रुप्स विल गेट अफेक्टेड. रिएक्शंस में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स में चेंजेस आती है, बाकी का जो साइड चेंज होते हैं ना, वो सब वैसे ही रहते हैं. So that was the first one. Second क्या देखा था हमने, फटाफट बोलो हाँ सब. I have to continue a lot today. Second वाला Reduction of alkyl cyanide. yeah, reduction of alkyl cyanide. What is that reaction also called as? Mendius reaction. Mendius reaction. Okay, Mendius reduction. See why I'm asking you the name. In exam they can ask you by name also, so you should know the names. ठीक है. Mendius Yes, reduction. ma'am. हाँ, Mendius reduction में होता क्या है, alkyl cyanide is Converted into amines. yes, alkyl cyanide is reduced into primary amines by using what, sodium and ethanol or lithium aluminum Hydride. ठीक है. So that is the second reduction reaction we have seen. Third क्या देखा, by reduction of Amide. अमाइड. रिडक्शन का जो अमाइड्स का जो रिडक्शंस है वो दो है, ठीक है. तो अमाइड को हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके भी रिड्यूस कर सकते हैं, या यू कैन डू इट बाय अनदर मेथड. व्हाट इज दैट? Hoffman's degradation. हॉफमैन्स डिग्रेडेशन. दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तुम्हारा अमाइड्स ही है, ठीक है. अभी सिमिलैरिटी ये है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? When one carbon will be less in Hoffman's degradation. Yes, one carbon atom will be less in Hoffman's degradation. ठीक है. Whereas in the other reaction, the number of carbon atoms will remain the same. So amide लिया और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अल्कोहल यूज करेंगे ना, तो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. वहां पर कुछ एलिमिनेशन नहीं होगा. बट इन केस इफ यू आर डूइंग इट बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड, वहां पर कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग? Bromine gas and KOH. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. ब्रोमीन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ना रिएजेंट रिएक्ट करके ब्रोमोहाइड्राइड बनता है, ठीक है, हाइपोब्रोमेट बनता है, ठीक है. तो ये हाइपोब्रोमाइड जो है दैट इज द वन व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है. तो इसी के वजह से तुम्हारा क्या होता है, जो अमाइड है वो अमाइन में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर एक कार्बन एटम लेस भी रहता है, ठीक है. तो तुम्हारा चेन का रिडक्शन करना है, कार्बन एटम कम करने का रहेगा ना, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस मेथड, ठीक है. एंड द मेन थिंग इज यू शुड नो द रिएजेंट्स आल्सो. अभी सपोज तुम लोगों को क्वेश्चन में ना कुछ रिएक्शंस दिया है, ठीक है. तो ए लिखा है वहां पर और एरो डाला है, एरो के ऊपर ब्रोमीन और KOH है. तो ये रिएजेंट देख के ही तुमको क्लिक होना चाहिए कि ब्रोमीन और KOH साथ पे दिया है, तो मतलब ये पक्का हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा. तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड का रिएक्शन है, तो अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है. सो दैट यू शुड रिकलेक्ट इट. स्टडिंग इज इम्पोर्टेंट, बट स्टडिंग इन अ स्मार्टर मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कंपेयर करके पढ़ाई करो, ठीक है. इसमें भी वही था, इसमें भी वही है, तो फर्क किस में है, तो वैसे सारे पॉइंट्स वगैरह सब नोट डाउन करो एंड अकॉर्डिंगली यू ऑल स्टडी, देन ओनली यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. तुम लोग जैसे 10th में 12th में पूरा 12th पे नहीं,
10th और लोअर क्लासेस में जैसा रट्टा मारते थे ना, वैसे सब करेंगे ना, तो 12th साइंस एग्जाम एंड ऑल विल बी वेरी टफर फॉर यू पीपल. ठीक है, हियर द स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को पढ़ा तो दूसरा चैप्टर का कनेक्शन तुमको समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा करेंगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा. ठीक है, सो लर्न टू कनेक्ट एवरीथिंग, मेक अ फाइनल कंक्लूजन, उसका एक चार्ट बनाओ, देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू स्टडी इट. ठीक है, वो धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा मैं किस लिए ऐसे सब बोल रही हूँ करके. सिंस इट हैज जस्ट बिगन, तुमको वो समझेगा नहीं अभी, बट लेटर ऑन यू विल हैव टू डू दैट एंड लर्न इट. ठीक है, so that was the fifth preparations which we did. Fourth preparation बराबर. उसके बाद हमने क्या किया था? Gabriel Thalamide synthesis है ना, Gabriel Thalamide synthesis. So what do you remember about Gabriel Thalamide synthesis? I remember something. इसके ऊपर मैंने कुछ होमवर्क दिया था and I've received very few students homework. बाकी लोग क्या कर रहे थे? It has been around 10 days, but you people have not yet responded. This is the way you will take the studies? Huh? Very few people they have done their work very neatly. Huh? That was not for my purpose. तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम लोगों को लिखने के लिए बोला था. ठीक है, जिसने भी अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किया है, टुडे इज द लास्ट डे फॉर यू ऑल. टुडे इटसेल्फ आफ्टर माय लेक्चर आई वांट यू ऑल टू सबमिट द होमवर्क. ठीक है, चलो बोलो, व्हाट इज गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस? एनीवन? Aromatic 1 degree amine cannot be prepared. Yeah, but what can be prepared first? That Aliphatic aliphatic what? primary amine. Aliphatic primary amine can be prepared from what? Ma'am, we convert thalamide into sodium 1 degree amine, and there are 2 to 3 steps. हाँ, what are those 3 steps? पहला स्टेप में होता क्या है? First, React thalamide with alcoholic KOH. Yes. Then what happens? What is obtained? potassium Everyone please be attentive. thalamide. I'll ask anyone. Potassium thalamide. हाँ, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड बनता है. सेकेंड स्टेप में React with alkyl halide. हाँ, then what is formed? An alkyl halide. An alkyl thalamide is formed. Then that is treated with NaOH, aqueous NaOH. Then the final product is your amine and sodium Thalate. Halate. So these are the 3 steps which is involved in the Gabriel Thalamide synthesis. ठीक है, तो यहाँ पर what cannot be prepared? Aromatic and amines cannot be prepared. Why aromatic amines cannot be prepared by Gabriel? This they can ask you for 2 marks question. Why Gabriel Thalamide cannot be prepared? Aromatic amines cannot be prepared by Gabriel Thalamide synthesis. Come on, say. Why? Because they do Because not undergo nucleophilic substitution. Who do not go? Aromatic. Aryl halides. कौन? Aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तुम्हारा हैलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर चल रहा है ना, वहां पर ये पॉइंट आया रहेगा. Did you all come across that? Yes, Yes, ma'am. ma'am. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों नहीं करते हैं, वहां पर एक पैराग्राफ जैसे, छोटा पैराग्राफ जैसे वहां पर दिया हुआ है. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन हियर वी कैन नॉट यूज. देखो सेकेंड स्टेप में हम लोग अल्काइल हलाइड यूज कर रहे हैं ना, RX यूज कर रहे हैं. तो RX यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है ना. डू यू ऑल नो व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल इज, बाय द वे? Yes, ma'am. व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? The nucleus lover, that is negatively charged. It is. Negatively charged species. ठीक है, I'll be coming to those points later on. तो अभी तक यहाँ तक ही हुआ था ना अपना लास्ट क्लास पे. यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या?
Ma'am, ma'am, in sodium thalate, they have put negative and positive charge on the oxygen and sodium respectively on one side only. Like in above, they haven't done that. Why? हाँ Why like that? Because if even in above also should come, no, oxygen should be negatively above means charged in sodium. Ma'am, in sodium thalate, two branches are there, no, sodium of thalate. CONA. No, I didn't get you. अच्छा अच्छा that one that is the same. वो same ही आएगा, उन्होंने डाला नहीं. They didn't put it. It will be the same only. Salt है Okay, ना? ma'am. So salt will have that positive and negative. So that is a printing mistake. You can put it, no problem. Okay, ma'am. Thank you. Okay, I'll share my screen. Just a minute. Can you all see my screen? Yes, ma'am. Okay. So let's Yes, ma'am. continue now. So preparation में last एक method बचा है, and that method is, can anyone say what is that method? Preparation of amine from alkyl halide. Preparation of amines from alkyl by ammonolysis of alkyl halide. Alkyl halide का symbol यही है ना, alkyl R and halide is X. ठीक है, this is the sixth method of preparations of alkyl halides. Now everyone will pay attention. Okay, so now see here we are going to prepare what? The amine. ठीक है, तो amine हम कहाँ से बनाने वाले हैं? By using alkyl halide. So we are going to use alkyl halide. ठीक है, उसके साथ we are going to add alcoholic ammonia. Okay, we are going to add alcoholic ammonia. It will be in excess. This word is very, very important. If you miss it out, your marks will go. And I'll explain you why it is very important. Okay? So, alkyl halide, when it is treated with excess of alcoholic ammonia, okay, on heating, these two together, it will get converted into what? The primary or the amines. Okay? Amine. So what is this reaction all about? Here, when an alkyl halide is heated with alcoholic solution of excess ammonia, it undergoes what? Nucleophilic substitution reaction, in which the halogen atom is replaced by an amino group. In which the halogen atom is replaced by an halogen atom by an amino group to form the primary amine. So this is the reaction. ठीक है, अभी ये जो reaction है इसको हम बोलते क्या है? This is called as ammonolysis. Now what do you mean by ammonolysis? अमोनो क्यों बोल रहे वो तुमको समझा रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा अमोनिया है, बराबर? ठीक है, Yes, ma'am. lysis का मतलब क्या है? You all are a biology students, so you should know what is lysis. What is lysis? बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना. Lysis means what? Breaking. ठीक है, ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं? लाइसिस बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अमोनिया का ब्रेकिंग हो रहा है. So since here the breaking of ammonia is happening, it is called as what? It is called as the ammonolysis reaction. ठीक है, or you Yes, can ma'am. say, or you can say in the other way also. See, कभी कोई टेक्स्ट बुक में ऐसे भी होता है, कभी बुक में ऐसे भी होता है कि this ammonia brings about the lysis of this C and X bond. ठीक है, यहाँ पर जो R का कार्बन है
वो C और X का ये ब्रेक करता है बॉन्ड, तो इसके वजह से भी इसको अमोनोलाइसिस बोलते हैं करके बोलते हैं, ठीक है. So it is defined in that way also, both the way also. But here the final thing is what, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और यहाँ पर अमोनिया का एक H बाहर निकलने वाला है, ठीक है. So now what is going to happen when you treat this alkyl halide with ammonia, no, ये जो X है, this X is replaced by what, मैं ये अमोनिया को ऐसे भी लिख सकती हूँ, NH2 HNH2 करके भी लिख सकती हूँ, ठीक है. तो ये X के बदले में यहाँ पर क्या आने वाला है, NH2 ग्रुप आने वाला है. NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं ना. So this amino Yes, group is being replaced by the X. तो तुमको फाइनली क्या मिलता है, RNH2 मिलता है तुम्हारा, और बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा, HX रहेगा. HX बन के वो बाहर निकल जाएगा. समझा क्या? दिस इज अ होल रिएक्शन ऑल अबाउट. So I'll Yes, repeat ma'am. the whole reaction once again. ठीक है. So here what is done, we heat what, alkyl halide and alcoholic ammonia solution together. So when you heat it together, what happens, the halogen, the halide group is replaced by the amino group, and finally you get a primary amine as the product. यहाँ तक समझा क्या सबको? Yes. ओके. Yes. हाँ, तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. This is called as what? Nucleophilic substitution reaction. Now let us understand these terms. ठीक है. अब ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? What do you mean by a nucleophile? The species. Nucleo means what? Nucleus. ठीक है. Nucleo means what? Nucleus. Phile means what? Loving. So this loves nucleus. So this we call it as what? Nucleus loving. ठीक है. न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या है? सी ऑलवेज वी कंसिडर न्यूक्लियस एज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है. तो ये लोग को, ये स्पीशीज को पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है. तो किसको पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगेगा? जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है ना. सो न्यूक्लियोफाइल्स Yes, विल ma'am. ऑलवेज कैरी अ नेगेटिव चार्ज. ओके. न्यूक्लियोफाइल्स, जिसको नहीं मालूम है ये टर्म ध्यान से सुन लो. Now everywhere you will come across this. So nucleophiles will carry a negative charge. So जिसके ऊपर negative charge है उन सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं. जैसे कि इसका शॉर्टकट में ऐसे लिखेगा NU, न्यूक्लियोफाइल माइनस, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? कोई भी हलाइड्स ले लो. ऑल हलाइड्स आर व्हाट? न्यूक्लियोफाइल्स. जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे हैलोजेंस क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है. जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा ना वो सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है. एक ये है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए मतलब उसके ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. सी फॉर एग्जांपल H2O, इसको है ना हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं. ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स है, ये न्यूट्रल है, ठीक है. ये भी लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स ही है. देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं ऑक्सीजन के ऊपर. सो दिस इज कॉल्ड एज Yes, ma'am. न्यूक्लियोफाइल. लेकिन ये भी न्यूक्लियोफाइल है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है करके. समझा क्या? सो न्यूक्लियोफाइल्स में दो टाइप है, एक चार्ज वाला है और एक क्या है? एक न्यूट्रल वाला है. न्यूट्रल वाला में क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. सो इन जनरल व्हाट यू कैन से, यू नो, न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. सी नेगेटिव चार्ज मिलता कभी? when do it get a negative charge? when there are more number of electrons with them, है ना. हम Yes, नेगेटिव ma'am. पॉजिटिव किसको बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं. बराबर ना. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स को मैं नेगेटिव बोल रही हूँ. क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसके लिए, ठीक है. सो न्यूक्लियोफाइल्स इन जनरल क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. ये लोग क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं. अभी मुझे बोलो ये लोग इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये लोग इलेक्ट्रॉन्स देंगे, डोनेट करेंगे कि एक्सेप्ट करने वाले रहेंगे? Donate. Donor. They will be a electron donors.
ठीक है, ये लोग क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स रहेंगे। ठीक है, सपोज मैंने कोई एक न्यूक्लियोफाइल लिया, अभी इसके बाजू में कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल इसका ऑपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ सी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अभी इसके पास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा। समझा, क्योंकि ये तो अमीर है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स भर के है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये भिखारी है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज व्हाट दे डू, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा Ma'am, ना? it will, ma'am, हाँ हाँ, if it will donate, then the charge remains same. चार्ज निकल जाएगा ना, इट विल बिकम न्यूट्रल देन। Okay. सी अभी मैंने इधर इसको F माइनस क्यों बोला, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। F का फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन? हाँ, 9. 9 ना। तो अभी यहाँ पर मैं कोई चार्ज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उसके पास, उसको जितना दिया गया है उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास है अभी के लिए। बट व्हेन आई पुट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनटू इट, सी ये 9 का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 मींस इट हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स इन देम, नो? मालूम है ना तुमको? Yes, ma'am. जब भी मैं F माइनस डालती तो मतलब क्या हो गया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इफ आई पुट F प्लस, इट मींस इट हैज गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो प्लस माइनस से हमको ये समझ में आता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है करके। ठीक है, तो जब भी ये F माइनस एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, व्हेन इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स F, वो F बन जाएगा। समझा गया, न्यूट्रल बन जाएगा, उसका Yes, चार्ज ma'am. चला जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? फ्रॉम 10 Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इट विल बिकम नाउ 9 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो उसका चार्ज निकल जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो दैट Yes, वाज ma'am. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो अभी तुमको ये टर्म याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल मतलब ये लोग नेगेटिव चार्ज, देखो ऐसे याद रख लेना, हमेशा ये कंफ्यूज होता है, सो आई यूज्ड टू रिमेंबर इट लाइक दिस, N नेगेटिव। ठीक है, N फॉर नेगेटिव, so N always they are negatively charged. ठीक है, so nucleophiles they will have a negative charge in them, they are electron rich species, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोला है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब मालूम है ना, यू ऑल अंडरस्टैंड द टर्म सब्स्टिट्यूशन, नो? Yes, ma'am. हाँ, अभी देखो A B है प्लस C है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये B को, ये दोनों जब भी रिएक्ट करेगा, कहाँ गया मेरा कर्सर, सी जब ये दोनों रिएक्ट करेगा, what is happening is ये B का जगह C ले रहा है और B बाहर निकल रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक को हटा के उस जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया ना। समटाइम्स इट हैपेंस नो व्हेन योर टीचर इज एब्सेंट, योर सब्जेक्ट टीचर इज एब्सेंट, तो कोई सब्स्टिट्यूट टीचर भेजते हैं ना, वो जगह भरने के लिए कोई और टीचर्स आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर B का जगह कोई और ले रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी सब्स्टिट्यूशन कौन करने वाला है, एक न्यूक्लियोफाइल करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? सपोज ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आके इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करेगा, तो मैं इसको क्या बोलेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Nucleophile comes and substitute one group, then I'll call that as what, nucleophilic substitution। वैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट किया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा? तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ये भी क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल ही है। दिस इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल एंड दैट इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। मम्मी लेक्चर लड़का में पैरो पैसो में। ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, one nucleophile is being replaced by another nucleophile।
So since one nucleophile is being replaced by another nucleophile, this reaction we call it as nucleophilic substitution reaction. समझ में आया क्या? I'll repeat it once Yes, ma'am. again. Here, the nucleophile is replaced by another nucleophile. NH2 is also a nucleophile. ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी तुम्हारे मन पे एक डाउट आया रहेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल कैसे हो गया करके. देखो अभी यहाँ पर ये कार्बन का ग्रुप्स है ना, ये हैलोजन है. तुम लोगों को मालूम है ना, हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना. हैलोजेंस Yes, एकदम ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होते हैं. तो यहाँ पर जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये सबको अपने तरफ खींचता है ना. जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इक्वली शेयर नहीं होता है. ये सब कहाँ पर होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वहां पर शिफ्ट हो जाता है. ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम होगा ना तुमको. तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, this halogen gets a partial negative charge and this carbon atom gets a partial positive charge. This you all can understand, no? Halogen atoms are highly electronegative. तो ये क्या करता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, तुमको ये मालूम है ना कॉन्सेप्ट. जब ये बॉन्ड बनता है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों का पावर सेम है तो इक्वली शेयर होगा. अभी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ पर रहेगा, इसके तरफ रहेगा. द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, जिसके वजह से ये हैलोजन को नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिलता है. तो अभी समझा ये हैलोजन न्यूक्लियोफाइल कैसे बना करके, समझा क्या? Yes, ma'am. ठीक है. सो हमेशा याद रख लो, हैलोजेंस ये लोग हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही रहते हैं. दे आर ऑलवेज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. अभी यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल कैसे बना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं. मैंने बोला ना न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं करके. तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज व्हाट दे कैन, दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये लोग डोनेट कर सकते हैं. तो इसके वजह से हम NH2 ग्रुप को भी क्या बोलते हैं, we call them as a nucleophile. So in ammonolysis reaction, what happens? A nucleophile, that is X, is substituted by another nucleophile, that is NH2. Okay, and finally we get a primary amine as the product. Come on, just have a look at it. यहाँ पर जो भी टर्म्स दिया है मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं देखो, एंड इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. Done? Any doubts still here? No, ma'am. No, ma'am. हाँ? No, no, ma'am. ओके, ठीक है. मैं ना तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पेज खोलती हूँ, एक मिनट. कैन यू ऑल सी दिस? Yes, Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. read it out. Huh? Just try to understand. See here, when alkyl halide is heated with alcoholic solution of excess ammonia, it undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by an amino group to form the primary amine. So this is your basic reaction. This process of breaking of CX bond by ammonia. So CX bond is broken by ammonia. So it is called as what? Ammonolysis. Okay. The reaction is also called as alkylation of ammonia. ये reaction को क्या बोलते हैं?
अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी बोलते हैं। देखो अमोनिया में आर ग्रुप आ गया ना, कैन यू अंडरस्टैंड? अमोनिया में वी आर ब्रिंगिंग द आर ग्रुप, मतलब इसका अल्काइलेशन हो रहा है, सो दैट इज व्हाट दे आर मेंशन्ड, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सील्ड ट्यूब at 373 Kelvin. So this is the temperature at which it is carried out. It may be noted that the primary amine obtained in the first step is a stronger nucleophile than ammonia. This point has to be cleared now. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? The primary amine obtained, यहाँ पर जो primary amine बन रहा है ना, this is a stronger nucleophile than ammonia. So let us see why it is so. थोड़ा समझने का कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बना तुम्हारा, RNH2 बना। व्हाट दे आर सेइंग, RNH2 इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया, दे आर सेइंग। कैन एनीवन से व्हाई इज इट सो? कैन एनीवन ट्राई, मेक अ ट्राई। थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बेसिक। ओके, आई विल से, देखो अभी मैंने न्यूक्लियोफाइल किसको बोला, मैंने न्यूक्लियोफाइल कौन है बोला मैंने? इलेक्ट्रो रिच एंड Nucleus loving. rich, ठीक है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, ये लोग रिच है करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, एकदम मतलब बाय हार्ट इफ इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। समझा? एनीवन हु डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स वेरी फास्ट, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फास्ट, मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड फास्ट देन उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अभी कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन वही जल्दी से देगा ना, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? If anyone has got more electron, it will donate the electrons also more faster. So that type of a nucleophile we call it as what? Strong nucleophile. अभी कोई है न्यूक्लियोफाइल, वो बहुत एकदम धीरे धीरे ऐसे मतलब बिना इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। मतलब उसके पास है इलेक्ट्रॉन लेकिन फिर भी उसका मन नहीं करता है देने का। ठीक है, तो वैसे वाले इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बोलेंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। ये दो टर्म समझा गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है? यस मैम। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में बोलेगी ना तो तुम्हारे मन पे ये याद आना चाहिए कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? दिस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब ये मतलब एकदम ऐसे बाय हार्ट इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, लेकिन ये इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा कम ही है, तो इसको हम लोग वीक बोल रहे हैं और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। देखो दोनों में भी एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं और इसको वीक बोल रहे हैं। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ दिस आर ग्रुप प्रेजेंट। यहाँ पर एक आर ग्रुप है ना, बिकॉज ऑफ दिस। ये आर ग्रुप अभी क्या करता है देखो, से अभी अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। सो दिस नाइट्रोजन एटम कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it can act like a nucleophile. ठीक है, no doubt this will act like a nucleophile. लेकिन when you compare it with RNH2, when you compare it with RNH2, this lone pair of electrons are donated faster. ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैसा होता है? फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? देखो ये R ग्रुप है ना, you all know plus I effect. Yes, ma'am. No, it is an electron donating group. हाँ? R is an It electron is donating. electron donating group. R के पास प्लस आई इफेक्ट है ना, तो R क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, R हैज प्लस आई इफेक्ट। H के पास उतना प्लस आई इफेक्ट नहीं है, लेकिन R के पास क्या है? प्लस आई इफेक्ट है।
तो ये प्लस आई इफेक्ट के वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो नाइट्रोजन के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है और ये लोग भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये और ज्यादा रिच हो रहा है, ठीक है। सो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन फास्टर। ये ना तुम लोगों को समझने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या हो जाता है, एक छोटे जगह पर जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है ना, तो रिपल्शन शुरू हो जाती है ना। कैन यू अंडरस्टैंड? अभी इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डेड का भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब एक ही जगह के अंदर है ना, तो इनके अंदर थोड़ा रिपल्शन आ जाती है। तो ये रिपल्शन के वजह से उसका स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और वो स्टेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी खत्म करता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर पे ऑलरेडी पूरा घर सामान से भरा हुआ है, देयर इज नो प्लेस फॉर एनी न्यू थिंग, और कोई आके तुमको और नया चीज दे रहा है और घर पे और भरा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो स्पेस कम करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको बाहर ही देंगे ना। तो द सेम थिंग हैपेंस हियर, पहले से उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उल्टा उसको और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसके रिपल्शन होने लगते हैं ना, तो वो अनस्टेबल बन जाते हैं। ज्यादा देर तक हम लोग अनस्टेबल नहीं रह सकते ना, तो स्टेबल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करता है, जल्दी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सिंस इट गिव्स इलेक्ट्रॉन मच फास्टर, we call this as a stronger nucleophile. Have you all understood this? Yes, ma'am. समझा गया सबको? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. की आवाज आता है तुम्हारा, एक दो जन, they are the one who is answering, others are just keeping quiet. तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा है क्या उन दोनों को? हाँ, others please be active. ठीक है, so here you will have to remember this line that this RNH2 group is a stronger nucleophile than ammonia. This is because of what? Because of plus I effect of this R group. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस आर ग्रुप, इसके वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये थोड़ा कम न्यूक्लियोफिलिक नहीं है करके नहीं बोल सकते। हाँ, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, अभी फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट है, सेकेंड रैंक वाला स्टूडेंट है, तो दोनों को ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ये अच्छा पढ़ता है ये कम पढ़ता है करके, ऐसा नहीं है ना। दोनों भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका थोड़ा मार्क्स ज्यादा है उसका कम है, वैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही है यहाँ पर, दोनों न्यूक्लियोफिलिक ही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा जल्दी से डोनेट करता है, ये थोड़ा कम डोनेट करता है, ठीक है। So that Yes, is ma'am. what has been mentioned there. अभी ऐसा होने की वजह से ना एक प्रॉब्लम आ जाती है। What is that problem? Let us see. से तुम्हारा एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है, मैं पूरा फाइनली एक समरी बना के बोलेगी। हाँ, ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन उसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। समझ के केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, कभी तुम लोग मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। रट्टा मारेंगे तो फिर एवरीथिंग यू विल फॉरगेट इट। सी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था, RX प्लस अमोनिया गिविंग यू RNH2. This was your basic reaction, right? तो यहाँ पर Yes, क्या हो ma'am. रहा था, this nucleophile was replaced by this nucleophile, ठीक है, और ये बन गया था, ठीक है। अभी ना थोड़ा इसको है ना, तुम लैब में कर रहे वैसा इमेजिन करके देखो, तुम्हारे पास एक फ्लास्क है, ये फ्लास्क के अंदर तुमने RX डाला और तुम लोगों ने अमोनिया डाल दिया अंदर, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके RNH2 बना रहा है। अभी ये सब लोग अंदर ही पड़े हुए हैं, एवरीवन इज प्रेजेंट इनसाइड दिस कोनिकल फ्लास्क, है ना। तो अभी यहाँ पर RX एक ही रहेगा क्या, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड एक ही रहेगा क्या, एक मॉलिक्यूल नहीं ना, बहुत No, सारा ma'am. अल्काइल हैलाइड रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पर चांसेस है ना, ये अल्काइल हैलाइड ये वाला न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, यस और नो? कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसे मतलब अल्काइल हैलाइड को थोड़ी ना मालूम है कि अपना न्यूक्लियोफाइल को यही न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस करना है करके, नहीं ना।
ये भी एक नया न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, और वो इससे भी स्ट्रॉन्गर है, तो ये अल्काइल हैलाइड इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ भी रिप्लेस हो सकता है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So nucleophilic substitution can happen with this also. See, अभी ये इसका रिएक्टिविटी कम होता था ना, तो चांसेस कम होती थी, लेकिन ये इससे ज्यादा है, अमोनिया से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो देर इज अ हाई चांस ऑफ दिस ग्रुप रिएक्टिंग विद दिस वन। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या बनेगा देखो, RX प्लस RNH2, ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, व्हाट विल हैपन इज you will get something like this, RNHR। क्या मिला? RNHR मिला। क्या मिला? क्या है ये? Secondary amine. सेकेंडरी अमाइन। समझा क्या? तो देखो तुम्हारा जो प्राइमरी अमाइन बना था वो अभी क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन बन गया। Secondary. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अभी ये आगे जाके ये भी क्या कर सकता है, दिस विल ऑल्सो फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म टर्शरी अमाइन, फिर क्वाटरनरी अमाइन, वैसे इसका रिएक्शन है ना आगे बढ़ते जाता है, समझा? प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन बनेगा, सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइन बनेगा, फिर जाके लास्ट में रिएक्शन स्टॉप होगा। तो मतलब यहाँ पर व्हाट कैन हैपन, अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये कोनिकल फ्लास्क को थोड़े देर के बाद जाके चेक करेंगे ना, इसके अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, फिर उसका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, सब इसके अंदर रहेगा, तो ऐसे मिक्सचर मिल जाएंगे। अभी तुम्हारा एम था प्राइमरी अमाइन बनाने का, लेकिन तुमको मिला ये मिक्सचर, तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा कि नहीं, यस और नो? Yes, ma'am. क्या कौन सा काम बढ़ेगा? अभी इसको अलग करना पड़ेगा कि नहीं, तुमको इसका सेपरेशन करना पड़ेगा ना। और देखो सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनता तो ये अप्रोक्सीमेटली 100% बनता था, अभी ये सब 25% ऐसा बन गया, तो तुम्हारा यील्ड, तुम्हारा प्रोडक्ट भी कम बन रहा है ना, तो तुम्हारा लॉस ही हो रहा है ना। तुमको जो बनाने का था वो बना और उसके साथ अनवांटेड 75% बन गया, ठीक है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है। कैन यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मी? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. ये Yes, ma'am. रिएक्शन में है ना लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। Here the loss is more because what we need is primary amine. Instead of forming that, the other products are also formed simultaneously. Okay, तो इसको avoid करने के लिए what can be done? Any solution you people have for that? Can you all think and say? इसको हम avoid कैसे कर सकते हैं? And that's why we treat with Axis ammonia, no, the given alkyl halide. Be little louder, no? Ma'am, that's why we treat the alkyl halide with Axis ammonia only. No? हाँ, तो एक्सेस क्यों डाल रहे हैं हम लोग? What will happen if we put excess? This kind of chain reaction will stop and only required. हाँ, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ही क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम ही क्या है कि अल्काइल हैलाइड ज्यादा रहेगा ना, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, है कि नहीं? अल्काइल, देखो मैंने जो कोनिकल फ्लास्क लिया था, थोड़ा समझने का कोशिश करो, मैंने पूरा यहाँ पर खिचड़ी कर दिया है। देखो तुमने RX लिया, तुमने अमोनिया डाला, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास RX 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल लिया, सोच लो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके एक RNH2 बना रहा है, तो देखो अभी यहाँ पर बचा 9 RX मॉलिक्यूल है ना, तो 9 RX मॉलिक्यूल यहाँ पर बचा है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ हाई चांस ऑफ दिस गेटिंग रिएक्टेड विद दिस, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरैक्शन हमको कम करने का रहेगा ना, इन दोनों को मिलने का मौका ही नहीं देने का, तो इसके लिए क्या कर देते हैं, इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका अमाउंट बढ़ाने का, क्यों इसका अमाउंट बढ़ाने का, इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा ना, तो ये अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, ज्यादा करके इसके साथ रिएक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विथ RNH2 group. Are you all understanding? So to increase the rate of the reaction, to get only the primary amine,
वी हैव टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो तुम लोग यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं कि तो फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं क्या? करेगा, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके आजू बाजू में साइड में सब यही दिखेगा ना, तो ये अमोनिया के साथ ही रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? एकदम कम रिएक्ट करेगा। इसके लिए अमोनिया को क्या लेना चाहिए? एक्सेस में लेना चाहिए। सो इफ यू टेक अमोनिया इन एक्सेस यू विल गेट प्राइमरी अमाइन। तुमको प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। बट इफ यू टेक अल्काइल हैलाइड एक्सेस, इसको तुम लोगों ने एक्सेस ले लिया तो तुमको मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मे बी थोड़े देर बाद ये सब का सब क्वाटरनरी अमाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तुमको ये अमाइंस के बदले में सिर्फ क्वाटरनरी अमाइन भी मिल सकता है, तो वैसे भी हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ प्राइमरी अमाइन चाहिए, तो क्या लेने का? एक्सेस ऑफ अमोनिया लेने का। तो इसके लिए हमने वहां पर ये वर्ड यूज किया था, एक्सेस अमोनिया, ठीक है। मैं ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये वाला रिएक्शन नहीं दिया है, ये पुराना टेक्स्ट बुक में दिया है। आई विल राइट डाउन दैट रिएक्शन। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू ऑल कैन मेक अ नोट, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट, ठीक है। मैं ना इसको एक्सेस लेकर मैं बता रही हूँ। दिस इज टेकन इन एक्सेस। ये सपोज एक्सेस में लिया तो क्या होता है देखो, सब में हीटिंग है। ओके, नाउ जस्ट सी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये अल्काइल हैलाइड तुमने एक्सेस यूज किया, अमोनिया डाल दिया, ठीक है, और हीट किया, तो क्या हुआ? दिस एक्सेस रिप्लेस्ड बाय NH2 एंड यू गॉट द प्राइमरी अमाइन। सपोज तुमने इसको एक्सेस लिया है तो वो अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन मिला ना उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सी, यहाँ का H और यहाँ का X बाहर निकल रहा है और बाकी का ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तुमको क्या मिल गया? सेकेंडरी अमाइन मिल गया और HX बाहर चला गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? ये सेकेंडरी अमाइन, सी द सेकेंडरी अमाइन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक नाउ, यस और नो? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पर 2 R ग्रुप है ना, अभी एक R ग्रुप से ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बन गया, तो 2 R ग्रुप रहेगा तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगा कि नहीं? तो ये वापस रिएक्ट Yes, ma'am. करेगा। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वापस एक और मॉलिक्यूल ऑफ RX से रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बन रहा है? टर्शियरी अमाइन बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पर दिस H
and this X has gone out and this R has come over here. ठीक है, टर्शरी अमाइन बन गया. अभी ये टर्शरी अमाइन देखो अभी भी ये नहीं रुक रहा है. क्या कर रहा है ये? अगेन इट इज रिएक्टिंग विथ फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड. अभी इस बार कौन रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पर तो HX निकल रहा था ना सब जगह पर. यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तुमको इसका नेचर तो मालूम है ना, ये डेल्टा प्लस रहता है और ये डेल्टा माइनस रहता है. Yes, sir. ऑल नो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होता है. ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ये जब भी ब्रेक होगा ना ऐसे ब्रेक होगा R प्लस X माइनस करके. ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड टू दिस R प्लस, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है Yes, ना, ma'am. तो ये इसको डोनेट करेगा तो इसके साथ एक नया बॉन्ड आ जाएगा. देखो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई ना, तो इसके लिए अभी नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज मिल गया है. ठीक है, और बचा क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसके लिए मैंने X माइनस को बाजू में डाल दिया. ये समझा गया? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो ये क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. देखो जब भी तुमने RX को एक्सेस लिया तो पहले प्राइमरी अमाइन बना, वो प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन बना, वो सेकेंडरी अमाइन टर्शरी बना, और फाइनली क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो तुमको लास्ट में थोड़े देर बाद आएंगे तो तुमको क्या दिखेगा? सिर्फ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिखेगा, तुम्हारा प्राइमरी अमाइन वहां पर गायब ही हो जाएगा. समझ में आया क्या अभी? हाँ, तो इसके लिए हम लोग है ना अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में नहीं लेते. कभी एक्सेस पे लेने का, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने का रहेगा ना, तो ये एक्सेस पे लेने का. तुमको प्राइमरी अमाइन तुम्हारा मेन मोटो है तो तुमको अल्कोहलिक अमोनिया लेना पड़ेगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, take a screenshot of this. If you are interested, you all can learn this, हाँ? ठीक है, नहीं तो Yes, तुम्हारे ma'am. एक्चुअली लास्ट ईयर तक दिया हुआ था, मतलब उसके पहले जब भी सिलेबस चेंज हुआ था ना वो टाइम पे तो था, लेकिन अभी ये सब निकाल दिया. तुम्हारा टेक्स्ट बुक को बहुत डाइल्यूट कर दिया है, बहुत सारा टॉपिक निकाल दिया है. 2 टेक्स्ट बुक था पहले 12th स्टैंडर्ड के लिए केमिस्ट्री का, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी तुम्हारा जो अभी का टेक्स्ट बुक है ना उतना मोटा था. दोनों को मिक्स करके एक ही बुक बनाया है. सो सी हाउ मच द टॉपिक हैज बीन डाइल्यूटेड, रिमूव्ड एंड ऑल. Yes, ma'am. बट इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, नो नीट वगैरह सब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब कुछ मालूम होना जरूरी है. द बेसिक थिंग एवरीथिंग यू शुड नो. किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, चार्जेस कैसे लिखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए. ठीक है, डोंट लर्न ब्लाइंडली, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे फिर एग्जाम्स के टाइम पे. ठीक है, ओके. सो आई टेक बैक दैट टेक्स्ट बुक वाला पेज. एक मिनट देखो, अभी यहाँ पर अभी तुम लोगों को समझेगा. इट मे बी नोटेड दैट द प्राइमरी अमाइन obtained in the first step is stronger nucleophile than ammonia. Hence, it further reacts with alkyl halide to form secondary and tertiary amines, and finally quaternary ammonium salt if ammonia is not used in large excess. Is this clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, एक बार रीड करो यहाँ. Yes, ma'am. या अभी खुद एक बार रीड करो, समझ के रीड करो. एक एक टर्म समझ में आ रहा है क्या? देखो.
समझा? Yes, ma'am. अभी लास्ट लाइन देखो. If you want me to wait, you can tell me, I'll wait. से अभी लास्ट लाइन देखना. The order of reactivity of alkyl halide with ammonia is Ri greater than Rbr then RCl. ठीक है. अभी रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे ना, स्पीड. ठीक है. से अभी कोई इंडस्ट्री वाला है, उसका मेन एम क्या रहेगा बोलो? कोई भी चीज बना रहा है, वो ही इज मेकिंग समथिंग, उसका मेन एम क्या रहेगा कोई भी इंडस्ट्री वाले का बोलो? उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले और जल्दी से जल्दी मिले. हाँ, वेरी गुड. तो उसको प्रोडक्ट ज्यादा बनने का और कम टाइम पे, है ना? कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्ट उसका बन गया तो मतलब उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, एंड दैट विल बी हिज एम. ठीक है. तो ये ऑर्डर ऑफ, ये जो रिएक्टिविटी है ना, रेट, जो स्पीड है, उसके बारे में भी मालूम होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो ये रिएक्शन है ना, इसका स्पीड कभी ज्यादा रहेगा पता है? ये जो हैलोजन है ना, वो जब भी आयोडीन रहेगा तो इसका स्पीड ज्यादा रहेगा. ठीक है. सपोज आयोडीन लिया तो तुम्हारा ये रिएक्शन सपोज 2 मिनट में हो रहा है. ब्रोमीन लेंगे ना तो 3 मिनट लगेगा. क्लोरीन लेंगे ना तो 4 मिनट लगेगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कौन सा अल्काइल हैलाइड चूज कर रहा है, वो तुम्हारा रिएक्टिविटी का रेट को डिसाइड करेगा, कितना टाइम पे तुम्हारा रिएक्शन खत्म होने वाला है करके. तो तुम्हारा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? Ri, फिर Rbr, फिर RCl. ठीक है. ऐसा क्यों? Why is it so? Why Ri is reacting very fast? Ma'am, is it because Ri bond length is greater and bond strength is less? See here, Ri, Rbr, then RCl. ठीक है. तो तुम्हारे हैलोजन, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा जाता है ना ऑर्डर. When you go down the group, what is happening? The size increases, no? The size keeps on increasing. तो सबसे मोटा वाला ग्रुप कौन सा है? आयोडीन है. So iodine is a good living group. ठीक है. आयोडीन क्या होता है? गुड. Lg मतलब लिविंग ग्रुप. ठीक है. सी, अभी ये रिएक्शन है तुम्हारा, Rx प्लस अमोनिया गिविंग यू RNH2 प्लस HX. देखो, अभी मुझे ये जगह से X को निकालने का है, मुझे ये जगह से X को निकालने का है और एक नया ग्रुप को अंदर लेकर आने का है. तो ये X को अपना जगह पहले खाली करना चाहिए ना. ये जगह खाली करेगा तो मैं नया ग्रुप लेकर आ सकती ना. कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. This has to vacate its place first. ये जितना जल्दी बाहर निकलेगा उतना जल्दी मैं दूसरा ग्रुप को लेकर आ सकती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर आयोडीन रहेगा ना, वो जल्दी से निकल जाता है क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है. ठीक है. क्योंकि ना उसका साइज बहुत बड़ा रहता है. तो जब भी साइज बड़ा होता है, ये बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है. मोर longer the bond length, you require very little energy to break the bonds, no? Yes or no? Suppose Yes, ये तुम्हारा एक एटम है और ये तुम्हारा एक एटम है. ठीक है. तो देखो, इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दूर दूर हो जाते हैं. तो यहाँ पर बहुत कम एनर्जी से ये बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. समझा? लेकिन सपोज 2 एटम बाजू बाजू में है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो वो ज्यादा रहता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड. ठीक है. तो इसी के वजह से तुम लोग यहाँ पर सिंपली इतना याद रखना, दिस आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो इसके वजह से आयोडीन जल्दी निकल जाता है और NH2 फटक से आ जाता है. फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन. सो इफ यू आर अ स्मार्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, you will choose which halide, you will use Ri if you want your reactions to be faster. I hope I made it clear. समझा सबको? Yes, ये वाला ma'am. पूरा रिएक्शन. ठीक है. तो इसमें जो भी एक एक पॉइंट था मैंने सब कुछ बता दिया है.
Now it is your responsibility to study it properly. ठीक है? So I'll repeat the whole reaction again. What is ammonolysis of alkyl halide? अभी जो टेक्स्ट बुक में दिया बस मैं उतना बताएगी, एक्स्ट्रा नहीं बताएगी. ठीक है? तो यहाँ पर ये रिएक्शन में होता क्या है? अल्काइल हैलाइड is heated with excess of alcoholic ammonia. ठीक है? So alkyl halide is heated with excess of alcoholic ammonia. It undergoes nucleophilic substitution reaction where the halogen atom is replaced by the amino group to form the primary amine. ठीक है? This reaction is also called as alkylation of ammonia. It is carried out at 373 Kelvin in a sealed tube. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. So this completes the preparations of amines. Now, can anyone tell me, is it a good method to prepare alkyl primary amine? Is it a good method compared to the other one? ये मेथड को अच्छा बोलेंगे क्या? हाँ? नहीं क्या हो गया? थर्ड स्टेज ज्यादा टाइम तक रहनी चाहिए. You're talking to me or someone else? Can anyone tell me, is it a good method compared to the other preparation method? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Good कैसे होगा? This is not that good, huh? Unless and until you take it in excess, there is always a chance of forming what mixtures of amines. लेकिन बाकी का reactions में mixture बनने का chances ही नहीं है ना? Direct हमको single product ही मिल रहा है. No, but can we increase the pace of reaction in other methods, just like we can do in the case of alkyl halide by using iodine? हाँ, that way we can do it, but compare करेंगे ना, ये method को उतना अच्छा method नहीं बोलते हैं. ठीक है? Okay, ma'am. So that is done. Now let us move on to the next topic. अभी सब सोचने वाला चीज है, तो तुमको ना थोड़ा सोच के ये सब अंडरस्टैंडिंग करने का है. तो I'll give you 1 minute break. ठीक है? 1 मिनट के बाद में शुरू करेगी. नया टॉपिक है ये. Okay, now let us continue. So अभी तक अपना क्या क्या हुआ है? We have done the IUPAC on common nomenclatures. ठीक है? अपना nomenclatures हो गया है. Then we have seen all the preparation methods. ठीक है? amines का जो भी preparations है वो सब हमने देख लिया. Total कितना methods था? 6 methods थे. ठीक है? Now third part what we are going to see is the physical properties. Physical properties का मतलब क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर, ओडर, नेचर, वैसे वो टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है? सो अमाइंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. बिफोर दैट
You tell me, you all know what is a covalent bond is? Yes, ma'am. You all know what is a covalent bond. How it is formed? By sharing of By electrons. sharing of electrons. By sharing of electrons. A के पास एक इलेक्ट्रॉन है, B के पास इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों बाजू में आते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है. ठीक है, दे फॉर्म अ बॉन्ड. So that type of a bond which is formed by sharing of electrons, we call it as a covalent bond. अब ये बॉन्ड बनते क्यों है? ये लोग को अलग ही रहना चाहिए था ना, A को अलग B को अलग रहना ही चाहिए था. क्यों बॉन्ड बनाया इन्होंने? To gain Ma'am, stability. they have some unbalanced electrons. Yeah, to gain the stability. See, we all are running to attain the stability. बराबर ना? So if I am teaching here or anywhere, for what I am teaching? For the money. ठीक है, तो मनी से हमको थोड़ा whatever stability we want in life, we will get it. ठीक है, so we are running each and तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आज पढ़ाई करेंगे तो बाद में अच्छा कमाई कर सकते हैं, then you can get a stable life. ठीक है, सो अपना अल्टीमेट एम क्या होता है सबका? स्टेबिलिटी गेन करने का. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी एटम्स है, ये लोग को भी स्टेबिलिटी चाहिए. ये लोग को स्टेबिलिटी कभी मिलती है? जब भी उनका ऑक्टेट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आती है. व्हेन देयर ऑक्टेट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देम, देन दे बिकम स्टेबल. तो उसी के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. सपोज ये अपने आप स्टेबल है, तो वो लोग किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करते थे और कोई रिएक्शन ही नहीं होता था. समझा? तो जो भी रिएक्शन हो रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ये कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं. एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? When the electron clouds are more attracted towards a particular atom or a molecule in a given compound, that is called Okay. as polarity. Ma'am, there is difference in the electronegativity and the electropositivity between both of them. हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यहाँ पर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ओके, नॉन पोलर मतलब यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होते. सी फॉर एग्जांपल, सपोज ए और बी बॉन्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज नेगेटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं ये वाला बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आई विल कॉल दिस एज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इसको नॉन पोलर बोलेंगे. ठीक है, तो ये कभी होता है, सपोज मेरे पास कार्बन कार्बन एटम्स हैं. अभी ये दोनों सेम एटम है, मतलब सेम एलिमेंट्स के एटम है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना सेम रहता है. मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, वो दोनों आपस में इक्वली शेयरिंग होता है. ना ये अपने तरफ खींचता है ना उसके तरफ खींचता है. ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर पे रहता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर पे इक्वली शेयर्ड रहेगा ना इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा ना इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा. ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहते हैं. तो वैसा बॉन्ड बना तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं. ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है. लेकिन सपोज मैंने ये कार्बन के साथ हैलोजेंस को अटैच कर लिया, तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था ना, हैलोजेंस को इलेक्ट्रॉन खींचने का एबिलिटी ज्यादा है अपने तरफ. ठीक है, तो ये क्या करता है? जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपने तरफ खींचता है. तो जब ये अपने तरफ खींचने का कोशिश करता है ना, तो खींचता है, तभी इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाती है. तो जब इसका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है ना, तो इसको नेगेटिव चार्ज मिलता है और इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलता है. एंड दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड वी कॉल इट एज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. और ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी होता है, पोलर बॉन्ड्स को, कंपेयर टू द नॉन पोलर वंस. ठीक है, तो अभी ये पॉइंट्स तुमको याद रखना चाहिए हमेशा. ठीक है, तो पोलैरिटी कभी आएगा? व्हेन पोलैरिटी विल कम व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हेन पोलैरिटी विल कम, कम ऑन से. When polarity will come When there is a electronegativity difference. when there is a difference in electronegativity.
दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, तो वो कंपाउंड कैसे रहेगा? दे विल हैव अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स इन देम। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, ये NH जो है ना, ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? Polar. ओके, यू आर सेइंग पोलर, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, ma'am. इट इज पोलर। Polar. व्हाई आर यू सेइंग इट इज पोलर? मैंने तो कोई चार्जेस नहीं लिखा है यहाँ पर। Ma'am, because it has lone pairs. हाँ, Because nitrogen has lone pair of electrons. with lone pair we cannot say. Anything else? देखो, पहली बात ये है कि ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, तो जैसा ये दोनों एटम अलग अलग हो गया, सिर्फ व्हेन आई राइट CC H OO, तो ये दो सेम एटम है, तो सेम एटम है तो पावर भी सेम रहेगा। अभी यहाँ पर ये दोनों अलग अलग एटम है, तो अलग अलग एटम है तो ऑब्वियसली इन दोनों को इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी अलग अलग होने वाला है, तो इन दोनों में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जरूर रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी देयर। तो इनका है ना एक स्केल होता है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है? तो उसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? इट इज बीन फाउंड, इट इज 3। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पाउलिंग स्केल करके होता है, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 3 है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? जो भी बॉन्ड शेयर्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा, तो कौन पॉजिटिव चार्ज और कौन नेगेटिव चार्ज बनेगा? H will become positive and N is negative. पॉजिटिव, और N जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है वो नेगेटिव। देखो अभी चार्जेस आ गया है, तो मतलब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया? दिस बिकम्स अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, दिस हैज बिकम व्हाट? पोलर बॉन्ड। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अभी देखो यहाँ पर, अभी सपोज मेरे पास है ना 2 या 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? ये ए। अभी ये दोनों एटम सेम है, तो इनमें कोई चार्जेस नहीं रहेगा ना, ये नॉन पोलर रहेगा, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा क्या? ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा क्या? इसमें कोई चार्जेस ही नहीं है, दे आर नॉन पोलर, इनमें बॉन्ड है ना, नॉन पोलर है। विल दे अट्रैक्ट दिस ईच अदर? आपस में लोग अट्रैक्ट करेंगे? No, ma'am. नहीं करेंगे ना, दूर ही रहेंगे। दे विल नॉट अट्रैक्ट विद ईच अदर। अट्रैक्ट कभी होगा? ये पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा, ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो देखो अभी मेरे पास सपोज ऐसा कुछ है, ए बी ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी अट्रैक्ट करेंगे क्या आपस में? Yes, ma'am. ये मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे? यस और नो? Yes, ma'am. दे विल अट्रैक्ट, नो? और अट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा? इनका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा ना, ये लोग बाजू में आ जाएंगे, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन नाउ? ये ए बी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके बाजू में क्या रहेगा? ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के बाजू में ये पॉजिटिव आ जाएगा और बी आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाजू में क्या आएगा? ए बी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है? सो द सेम थिंग is going to happen in case of amines also. amines में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। देखो अभी सपोज मेरे पास प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है? नुसतं पाणी ना बुक्की प्रकार. So suppose if I have a primary amine RNH2, ठीक है? मेरे पास RNH2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक और RNH2 है, ठीक है?
थोड़ा नीटली बनाते हैं, एक मिनट ना। ये ऐसे लाइन वाइन मत बढ़ाओ रे। RNH2 है, ठीक है। RNH2 है। चलो अभी अपने लिए बस 3 मॉलिक्यूल्स काफी है, ठीक है। तो मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर मैंने प्राइमरी अमाइन डाल दिया है, ठीक है। ये मेरा बीकर है, ये बीकर के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ RNH2 ग्रुप है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो ये अमाइन है ना, ये अमाइन के पास यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अभी हमने ऊपर सीखा ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो भी H है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो N है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अभी मुझे बताओ ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे मैम। यस मैम। अभी कैसे अट्रैक्ट करेगा, कौन किसके साथ अट्रैक्ट करेगा बोलो? इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये यस तुम्हारा मैम। फर्स्ट मॉलिक्यूल यस है, मैम। ये तुम्हारा सेकेंड मॉलिक्यूल है। फर्स्ट मॉलिक्यूल का प्लस और सेकेंड मॉलिक्यूल का N, दिस टू विल अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। देखो बॉन्ड बनाया मैंने ब्लू लाइन से, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल के बीच में भी एक अट्रैक्शन रहेगा, ये H ये N के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो दे हैव फॉर्म्ड वन बॉन्ड। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये बॉन्ड में हाइड्रोजन है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स में हाइड्रोजन होना चाहिए, हाँ? ठीक है। अभी यहाँ पर ये लोग ने बॉन्ड बनाया ना, ये लोग ने बॉन्ड बनाया, मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकती, यहाँ पर कुछ बॉन्ड है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, ऐसे सब तुम लोग ने पढ़ा है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यस मैम। आयन Yes, डाइपोल ma'am. बॉन्ड्स, ऐसे सब पढ़ा है ना। तो वैसा कोई बॉन्ड रहेगा, लेकिन मैं इसको डाइपोल नहीं मैं इसको हाइड्रोजन नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है ना मुझे, बट यहाँ पर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहेगा ना, तो मैं उसको कौन सा बॉन्ड बोलेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेगी। तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड है थ्रू विच बॉन्ड्स? थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, हमेशा इनके साथ होता है। हाइड्रोजन ऑलवेज बॉन्ड्स अप विद FON, H और F या H और O या H और N, इनके साथ ही हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी यहाँ पर किसके साथ हुआ है? नाइट्रोजन के साथ हुआ है ना। तो वैसे फ्लोरीन रहेगा तो भी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन रहेगा तो बनता है, ऑक्सीजन रहेगा तो बनता है। तो ये याद रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा किसके साथ होता है? हाइड्रोजन और FON के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गया। ये कॉन्सेप्ट समझा? यस मैम। दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर। अभी इसको इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? इंटर का मतलब क्या है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, तो इसके लिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, खुद का अंदर भी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना तो इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, ठीक है। ये समझा क्या कॉन्सेप्ट सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना बोलो? यस। हाँ, क्या हो दो। गया? नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना है? 1। वन। एक और बन सकता है क्या? मैं ये दो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूँ। यस इसके बीच में मैम। एक बना है ना, तो एक ही बनेगा कि और भी बन सकता है? मिस बन सकता है। बन सकता है ना। क्यों बन सकता है? क्योंकि एक और हाइड्रोजन है ना यहाँ यस पर, मैम। वन मोर। एक और मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है कि नहीं? यस और नो? यस मैम। I can draw one more molecule here, no? RNH करके, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है ना,
ठीक है। Yes, ma'am. प्राइमरी अमाइन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 2. It can form 2 hydrogen bonds. Very important point. Primary amine forms 2 hydrogen bonds क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन्स है। ठीक है। Let us come to the secondary amines now. Secondary amines में क्या है? R, NH, R है। तो अभी मुझे बोलो ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा? 1. Secondary amines can form how many hydrogen bonds? 1. 1. Can everyone understand? It can form 1 Yes, hydrogen bond. What about tertiary amines? No bond. Tertiary amine, can it form a hydrogen bond? No, Yes or ma'am. no? No, ma'am. There will be no hydrogen bonds. ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रहेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नो, अभी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो रहेगा ही ना। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा। तो इसके वजह से ये मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट तो कर सकेगा, ठीक है, दिस कैन अट्रैक्ट द अदर मॉलिक्यूल, बट दैट अट्रैक्शन विल नॉट बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट विल बी सम अदर टाइप ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो देखो प्राइमरी अमाइंस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, टर्शियरी में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। सो व्हाट यू कैन से इज दैट, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका स्ट्रॉन्गर रहेगा? 1 degree. 1 पे। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है प्राइमरी अमाइन का स्ट्रॉन्गर रहेगा, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन। ठीक है। सो व्हाट यू विल रिमेंबर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction is stronger in primary, then comes secondary, फिर tertiary। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए अपने को काम आएगा? टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट्स देखेंगे ना, प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है दैन सेकेंडरी अमाइन, दैन टर्शियरी अमाइन। ठीक है। तो इसका रीजन तुमको कहाँ से मिलेगा? इससे मिलेगा। ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सेकेंडरी अमाइन का कम, टर्शियरी अमाइन का कम। क्यों ऐसे? देखो यहाँ पर क्यों ऐसे होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मालूम है ना सबको? बॉइलिंग पॉइंट मीन्स व्हाट? Yes, ma'am. बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है, सपोज तुम्हारे Wow. पास कोई लिक्विड है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई एक लिक्विड है, यहाँ पर तुम इसको हीट कर रहे हो। ठीक है। सी ऑल नो द डिफरेंट स्टेट्स, नो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में Yes, सारे yes, ma'am. मॉलिक्यूल्स बाजू बाजू में रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहता है, गैसेस में बहुत दूर रहता है। तो सॉलिड में बाजू बाजू में क्यों है? क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, Yes. इनमें थोड़ा कम होता है, इनमें बहुत ही कम होता है। बराबर। तो ये अभी लिक्विड है प्राइमरी अमाइन, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, ये लिक्विड है। तो लिक्विड है, इनके बीच में क्या है? सम इंटरमॉलिक्यूलर Intermolecular ऑफ force. अट्रैक्शन इज देयर, अदर देन दैट इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। समझा गया? इनके बीच में एक अट्रैक्शन भी होता है जिसके वजह से वो लिक्विड फॉर्म पे है। इसके अलावा इनके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी है। ठीक है। तो जब भी तुम लोग इसको हीट करेंगे ना, हीट करते वक्त क्या होता है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होता है। कैन यू अंडरस्टैंड? व्हेन यू हीट इट, व्हाट इज एक्चुअली Yes, हैपनिंग? द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अप। तो ये क्या होता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट पे Gaseous जाता है। ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अभी प्राइमरी अमाइन है तो इसके अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्यादा ज्यादा लगेगा. ज्यादा एनर्जी लगने वाला है ना। समझ में आ रहा है? तो जो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाता है ना,
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वी नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड कन्वर्ट दिस लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। जो अभी इतना दूर पे है उसको इतना दूर करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगता है। सो मोर द हीट रिक्वायर्ड, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। समझा क्या? तो प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 है ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड इधर स्ट्रॉन्ग है एकदम, तो ज्यादा एनर्जी लगने वाला है ना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। समझ रहे हैं? इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सेकेंडरी में क्या हो रहा है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम रहेगा, कम एनर्जी लगेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सी मैं कौन सा बॉन्ड बोल रही हूँ तुमको समझ रहा है ना? यहाँ पर बहुत बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। ये NH2 एक मॉलिक्यूल है, RNH2 एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में का जो अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है ना, ये मैं बोल रही हूँ, ये फोर्स को बोल रही हूँ मैं। बच्चे लोग को लगता है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, ये NH का बॉन्ड और R का, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? उसको डिकम्पोज बोलते हैं हम लोग। कौन सा अट्रैक्शन को तोड़ रहे हैं? ये बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे ये वाला अट्रैक्शन को तोड़ रहे हैं। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमाइन इज मोर देन सेकेंडरी देन टर्शरी। कोई रीजन पूछा तो क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो अभी यहाँ पर देखो, see here. The NH bond in amine is polar because the electronegativity of nitrogen and hydrogens are different. Due to the polar nature of NH bond, primary and secondary amines have intermolecular hydrogen bondings. The intermolecular hydrogen bonding is to greater extent in primary amine than in secondary amines because primary amines have 2 hydrogen atoms bonded to nitrogen for hydrogen bond formation. Is this clear? Yes, ma'am. ठीक है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस है, जिसके वजह से नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है। Okay, and because of this they can attract the other molecule and it can form a hydrogen bond. प्राइमरी अमाइंस में 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए 1 हाइड्रोजन बनाता है। टर्शरी में हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, तो इसके लिए वो हाइड्रोजन एटम्स बनाता नहीं है। ठीक है? तो वही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है। Tertiary amines do not have intermolecular hydrogen bondings as there is no hydrogen atoms or nitrogens of tertiary amines. But due to polar NC bond, tertiary amines are polar. Tertiary amine polar ही है, no doubt in that, but hydrogen bonding नहीं बना पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बदले में उसमें कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है? Thus, intermolecular forces of attractions are strongest in primary amine and weakest in tertiary amines. Have you all understood till here? Yes, ma'am. Okay. What about others? Yes, ma'am. Yes. Okay. देखो अभी यहाँ पर देखो, ये ट्रेंड दिया है, देखो the observed order of boiling point of isomeric amine is primary, secondary, फिर tertiary. See यहाँ पर तुम लोग देखो, ये टेबल देखना, have a look at this table. ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन है ना, तुमको मालूम है ना कैसे आइडेंटिफाई करने का। NH2 है तो प्राइमरी, NH है तो सेकेंडरी, सिर्फ N है तो टर्शरी। बॉइलिंग पॉइंट देखो थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं? इसका 350 है, 0.8 केल्विन, इसका देखो 329 ही है और इसका 310 है।
सो प्राइमरी Yes, का सबसे ma'am. ज्यादा है ना, Yes, ma'am. ठीक है। सो ये से कम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लग रही है। इसमें थोड़ा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा कम लग रहा है। ओके, सो Yes, दिस ma'am. कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय on the basis of intermolecular forces in them, ठीक है। so that was about the boiling points of amines. so कोई भी पूछा the boiling points of amine का ट्रेंड क्या है, तो प्राइमरी अमाइन का ज्यादा, सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन बताने का, ठीक है। नाउ कमिंग टू Yes, देयर ma'am. स्टेट्स, द लोअर एलिफैटिक अमाइन्स आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर, ठीक है। ये लोग का सब फिशी ऑर्डर रहता है, अमीनो ग्रुप है ना, फिशी ऑर्डर रहेगा। मिडल मेंबर्स आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। लोअर मेंबर मींस व्हाट, लेस कार्बन एटम, कार्बन एटम 5-6 तक गैसियस स्टेट पे रहेगा। थोड़ा हायर जैसा कार्बन एटम बढ़ते जाएगा तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट जाएगा, ठीक है। Anilines and other aryl amines are usually colorless liquids but gets colored as they are easily oxidized by air. तो नॉर्मली देखेंगे ना प्योर फॉर्म पे ना ये व्हाइट कलरलेस रहता है, बट थोड़ी देर उसको खुला छोड़ देंगे ना ब्राउनिश कलर बन जाता है। जैसे तुम लोग एप्पल को कट करते हैं तो व्हाइट रहता है, थोड़ी देर बाद वो कलर चेंज करता है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर ये लोग भी ऑक्सीडाइज होकर इनका कलर बदल जाती है। Due to their ability to form hydrogen bonds with water molecule, lower aliphatic amines are soluble in water. अभी ये वाला point understand करते हैं हम लोग, the solubility in water. Now tell me, why salt dissolves in water? Why not oil dissolves in water? Salt पानी में dissolve होता है और oil क्यों नहीं dissolve होता है? Salt is granular Salt is and then any, oil is liquid. हाँ? See यहाँ dense density से relation रहता है ना। I didn't get you say. Ma'am, due to electronegativity difference. Yeah, but in other terms what you can say is like dissolves like, ये तुम्हारा एक मंत्र रहेगा इसके लिए, like dissolves like। अभी इसका मतलब क्या है, अभी पानी ले लो, वाटर ले लो, वाटर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नो, है ना, ऑक्सीजन Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलार मॉलिक्यूल है ना। वाटर हमेशा कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलार है। अब ये पोलार है, ये पोलार है ना, तो इसके अंदर कोई पोलार कंपाउंड डालेंगे तो वो डिसॉल्व होगा, समझा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलार में पोलार ही डिसॉल्व होगा। तो अभी तुम लोग इसके अंदर NaCl डालोगे ना, NaCl में Na पॉजिटिव रहता है, Cl नेगेटिव रहता है, ठीक है। ओके, सो ये भी पोलार है और ये भी पोलार है, so polar will get dissolved in polar. So what happens is when you put NaCl in water, Na प्लस रहेगा, इसका सराउंडिंग ऐसा हो जाता है, ये वाटर के साथ ये पूरा सराउंड हो जाता है। ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसको आके ऐसा अट्रैक्ट करता है। आर यू ऑल गेटिंग मी? देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा उसको खुद को अरेंज कर लेता है, नेगेटिव ऐसा, समझ रहा है क्या? आर यू ऑल गेटिंग मी? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऑपोजिट चार्जेस का थोड़ा अट्रैक्शन आ जाता है, तो पोलार कंपाउंड विल डिसॉल्व पोलार कंपाउंड। सो सिंस वाटर इज पोलार, इट विल डिसॉल्व ओनली पोलार कंपाउंड्स इन देम। अभी व्हेन यू स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑयल इन योर बायोलॉजी नो, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो आउटर लेयर है वो नॉन पोलार होता है। तो सिंस दे आर नॉन पोलार, दे डू नॉट हैव एनी चार्जेस ऑन देम नो, तो इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है करके क्या होता है, इनके बीच में ना रिपल्शन होती है, मतलब रिपल्शन होता है एंड दे डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन देम, ठीक है। तो इसके लिए पानी में ना हमेशा ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ऑयल्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। सो अभी तुम लोग मुझे ये बताओ, अपने पास अमाइंस है, अमाइंस पानी में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्योंकि तुमको अभी मालूम है, यू पीपल हैव स्टडीड नाउ, वाटर इज पोलर,
अमोनिया भी पोलर है, पढ़ा ना तुम लोगों ने, यस और नो? Yes, ma'am. है ना, नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोलैरिटी है इसमें भी, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा ना, तो अमाइंस विल डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, तो देखो अभी वही दिया है यहाँ पर, देखो ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। सब ये डिसॉल्व करते समय क्या करते हैं, दे फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आल्सो, उनके बीच में ना अट्रैक्शन आ जाती है। अभी मुझे बताओ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, बताओ किन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कैसे बनाएगा बोलो? कहाँ गया रे मेरा कर्सर? ये RNH है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। अभी मुझे बताओ किसके बीच में होगा, बोलो? मैम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में। ये पॉजिटिवली चार्ज है, कर्सर मुझे कर्सर दिखाई ही नहीं देता है, कहाँ गया रे? Here, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस ऑक्सीजन एटम। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन F O और N के साथ बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ठीक है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये Yes, ma'am. हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, सपोज तुम्हारे पास CH4 है और वाटर है, ये डिसॉल्व होगा क्या इसके साथ? नो मैम। CH4 H, ये इसके साथ डिसॉल्व होगा, यस और नो? हाँ, यस नो मैम। मैम। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये पोलर है, इसमें Yes, नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है ना। कार्बन और हाइड्रोजन में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट Okay. में ना, मतलब ऐसे कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो ये इसके साथ डिसॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, इसके साथ डिसॉल्व नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? यहाँ पर तो H है ना और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन Yes, बॉन्ड ma'am. बनेगा? Yes, ma'am. बनेगा? मैम पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है हाँ ना। मैम, वो हाँ, डिफरेंस नहीं है। कभी ऐसे मिस्टेक्स होता है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर तुम लोग को क्या लगता है, यहाँ पर H है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, चलो जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज ही नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज होना चाहिए, देखो यहाँ पर चार्ज है ना, ठीक है, दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन Yes, हैज ma'am. टू बी अटैच्ड टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर चार्ज रहेगा तो वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे इसके साथ बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रख लेना। ओके, लेट अस कम बैक नाउ। देखो, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, लोअर एलिफैटिक अमाइन्स आर soluble in water. Solubility of amine decreases with increase in the molar mass of amine due to increase in the size of hydrophobic alkyl groups. अभी इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा है? अमाइंस तो डिसॉल्व होता है पानी पे, ठीक है, लेकिन जैसा तुम लोग अमाइंस का R ग्रुप का चेन बढ़ाएंगे ना, तो उसका सल्यूबिलिटी कम हो जाती है। देखो, सल्यूबिलिटी ऑफ अमाइंस डिक्रीजेस with increase in the molar mass of amines due to the increase in the size of hydrophobic alkyl group. See here, suppose तुम्हारे पास, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, CH3NH2 है और तुम्हारे पास CH3 CH2 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 NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये वाटर सल्यूबल रहेगा, लेकिन ये वाटर इनसल्यूबल रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन ग्रुप है, यहाँ पर इतना बड़ा कार्बन ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स व्हाट? ये लोग है ना पानी से रिपल होते हैं, ठीक है, दिस इज दे रिपल इन वाटर, क्योंकि इनमें कोई चार्जेस ही नहीं होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई चार्जेस नहीं होता है ना, यस और नो?
दे डू नॉट हैव एनी चार्जेस। Yes, तो ma'am. जैसा ये वाला चेन बढ़ता है, इनका हाइड्रोफोबिक ग्रुप ज्यादा हो रहा है ना, इसकी वजह से ये वाटर इनसोल्यूबल बन जाएगा। समझा क्या? तो सारे अमाइंस वाटर सोल्यूबल नहीं है। कौन सा अमाइन वाटर सोल्यूबल है? ओनली विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर वाटर सोल्यूबल। मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका वेट भी कम होगा ना। लो मॉलिक्यूलर वेट अमाइंस आर वाटर सोल्यूबल, लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है दे आर वाटर इनसोल्यूबल। तो ये वाला पॉइंट Ma'am, only aliphatic amines are soluble in water. Like they are discussing about aliphatic amines only, not about अभी aromatic. वी हैव डिस्कस्ड दैट ओनली। अभी नेक्स्ट लाइन वो अपना ही आ रहा है, देखो। Aromatic amines and higher aliphatic amines are insoluble in water. Aromatic amines they also do not dissolve. ठीक है? Okay, ma'am. उनमें भी कार्बन नंबर ज्यादा है ना। They are more like this thing. They are more hydrophobic, उन पे ज्यादा कार्बन is more. ठीक है? तो इसके लिए aromatic amines भी insoluble है और higher aliphatic amines are also insoluble in water. So have you understood till here? Yes, ma'am. ओके, एक लास्ट पॉइंट, देन आई विल स्टॉप। सी, अभी है ना हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? अल्कोहल, अमाइंस और अल्केन्स के साथ। ठीक है, या डायरेक्टली इधर ही आ जाओ। ये वाला देखो, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, अमाइंस, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज दिस। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर कम अल्कोहल का, फिर अमाइन का, फिर अल्केन्स का है। ओके, सपोज तुम लोगों ने एक ही कार्बन एटम का सब लिया, एक नहीं दो लेते हैं, चलो। सपोज ये वाला एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली दे आस्क इन द एग्जाम्स। सपोज तुम्हारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, CH3 CH2 NH2, तुम्हारे पास है CH3 CH3, दो कार्बन वाला एग्जाम्पल में ले रही हूँ। CH3 CH2OH CH3 COH। ठीक है, सब में दो कार्बन रख के मैंने लिया है। ये तुम्हारा अल्केन है, ये तुम्हारा अमाइन है, ये तुम्हारा अल्कोहल है और ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है, फिर अल्कोहल का है, फिर अमाइन का है और सबसे कम किसका है? अल्केन्स का है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? जस्ट गेस करो ना। अभी तुमको रीजन मालूम है, बॉइलिंग पॉइंट किसके वजह से ज्यादा होगा, कम होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड या एनीथिंग बेटर? Intermolecular forces. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यस। तो सी हियर, इनका जो पोलैरिटी है ना उसके ऊपर, उसके बेसिस पे है। सी यहाँ पर है ना, यहाँ पर NH बॉन्ड है, ठीक है ना, NH बॉन्ड है। यहाँ पर O और H बॉन्ड है, यहाँ पर भी OH बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेयर करेंगे ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं है अभी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इनका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो ये ज्यादा पोलर रहेगा ना। ये बहुत मोटा है, दिस इज वेरी बिग एंड दिस इज लिटिल बिग, ये तो छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस है, तो ये अपने तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना, ये थोड़ा कम ही खींचेगा। तो मतलब इसके ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पोलैरिटी यहाँ पर ज्यादा आ गया ना, दिस हैज बिकम OH इज मोर पोलर, OH इज मोर पोलर देन NH। तो OH ज्यादा पोलर रहेगा, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि नहीं? यस और नो? Yes. तो ये थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग है, ये सब कंपैरेटिव स्टडी है, ये थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा।
ठीक है, तो इसका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी हमको ज्यादा लगने वाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा लगने वाला है। यस और नो? Yes, समझा ma'am. गया? तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड Yes, का ma'am. सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी हमको ज्यादा लगने वाली है, तो इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका थोड़ा कम, इसका और भी कम है। अल्केन में तो कोई पोलैरिटी डिफरेंस ही नहीं है, पोलैरिटी ही नहीं है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम 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 होता है। जैसे कि तुम लोग अपना वैक्स ले लो ना, कैंडल्स ले लो, कितना जल्दी से वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, अल्केन से ही बना है ना वो भी, ठीक है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, एकदम थोड़ा सा भी हल्का सा गर्म करेंगे तो भी वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दिस विल टेक लिटिल टाइम। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी तुम्हारे सामने बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो तुमको क्या याद रखने का है कि दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज ऑब्वियसली सम अट्रैक्शन, वो कोई अट्रैक्शन की वजह से ही ये दो मॉलिक्यूल्स बाजू में है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गया तो ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दिस थिंग्स यू विल हैव टू रिमेम्बर। तो लिक्विड का जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, तो लिक्विड को हम गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल बाजू बाजू में उसको दूर दूर करते हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वो बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो एनी मॉलिक्यूल्स यू टेक, ऑल द मॉलिक्यूल्स विल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। If it is easy to break that, then their boiling point will be less. If it is difficult to break that, then their boiling point will be higher. आज कुछ ज्यादा हो गया ना, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखा हमने, Yes, ma'am. ओके। स्क्रीनशॉट लिया क्या सबका? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जो नहीं लिया है। मैं एक एक बताती हूँ, शुरू कहाँ से किया हमने। ये वाला हो गया ना, ये वाला, अभी ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, तुमको समझ में आएगा क्या? इसका हो गया स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am. से अभी लेक्चर होने के बाद ना तुम लोग खुद एक बार रीड करने का, समझने का कोशिश करने का, तुरंत करेंगे ना तो एक बार तुम्हारे माइंड में बैठ गया तो यू विल रिमेम्बर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, ma'am. ये मैंने लिविंग ग्रुप के बारे में बताया था, आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन। नॉर्मली ना हम लोग क्लोरीन वाला कंपाउंड लेते ही नहीं है, तो इसलिए एफ नहीं डाला है वहां पर। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। All the things are happening for a reason, so you should analyze why it is happening. तो ऐसा समझ के करेंगे ना, मैथ्स होने दो, कुछ भी होने दो, तुमको समझ में आएगा। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स, थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, ब्लाइंडली बैठ के मगअप नहीं करने का। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस Yes, ma'am. पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बताया था। इफ यू वांट यू ऑल कैन टेक दिस। Yes, ma'am. ये वाला, okay, so today we have
वी हैव कंप्लीटेड विद द प्रिपरेशन पार्ट और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहेगा, ठीक है, उसका कंपैरेटिव स्टडीज हमने देखा था. So I want you all to read and come next time. So I'll be giving questions to you all. I'll ask you all to solve it. ठीक है? So please Yes, read and come. जैसा ये चैप्टर खत्म होगा ना, मैं सर को बोलेगी टेस्ट लेने के लिए. ठीक है? So please do study simultaneously. Don't be lazy. अभी पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने बैठ के खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं है. But you have to take your studies seriously. ठीक है? चलो फिर next time मिलेंगे. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. If Bye, you ma'am. have any Thank doubt you. in the next class, you all can ask me. Okay? Yes, ma'am. Okay. Chalo, bye.